regarding the screen flows, whatever we covered, last time. Any doubts, any issues, any open points? हेलो सर, गुड इवनिंग। सलमान शेख बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर, यस। एक्चुअली सर, मेरे साथ प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है कि अभी अपना जो बैच टाइमिंग जो रहता है 9:30 PM टू मतलब 9:30 से 10 के बीच में, तो मेरा वो टाइम पे ऑफिस का टाइम ही रहता है, मतलब ऑफिस में वर्क फ्रॉम ऑफिस है मेरा। तो मुझे लास्ट वीक पूरा मतलब बहुत हेक्टिक हुआ कि अपना बैच अटेंड करने का, बट मैंने किया नहीं बैच अटेंड। बट मैंने वीडियोस फॉलो करके मतलब मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। जस्ट एक बार अगर आपके पास अगर टाइम है तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं तो। Okay, which part you want to go through? मतलब मैं भी अभी तक फ्लोज तक आ चुका हूँ। Okay. Okay. Hold on. So मतलब आपने कुछ बनाया है, आप वो दिखाना चाहते हैं या यस क्या? यस यस, मैंने एक एप्लीकेशन मतलब इन प्रोसेस है, तो वीडियो फॉलोज करके वहां तक बनाया हूँ मैंने। जस्ट अगर आपको टाइम है अभी, नहीं तो फिर आफ्टर सेशन आप चेक कर सकते हो। नहीं नहीं, it's fine. I think everyone will get a brief recap also, which is needed. तो ठीक है, आप कीजिए, आप शेयर कीजिए. Let's go through this. Okay, hold on. Am I sharing my screen? Yeah, sorry. Yeah, I was sharing my screen. Right. Share your screen. Let's go through it. And while he is sharing his screen, so meanwhile, I wanted to inform you guys what is the plan for the next days. So okay, let's do one thing. Okay, let's do one thing. That today, let's make this a recap session. Okay, and tomorrow we will cover. We have the record triggered flow to cover it yet, right? So tomorrow we will cover the record triggered flow, and after that, day after tomorrow, which is Wednesday and Thursday. These 2 days, you guys will get time to prepare. Okay, and Friday, Saturday, Sunday. Out of these 3 days, we have how many people here? Let me just check in the chat first. All the people in the chat are, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 people. How many are in the class? Well, 28 people don't join in the class. Okay, do one thing. Do one thing. All the people who are here, I'll give in the WhatsApp chat, I'll message it. So Friday, Saturday, and Sunday, what we will have is, I'll schedule group mock interviews. Okay. Now these group mock interviews, I'll divide you probably into groups of 3, right? And where we will go through what all will be the content for that interview, everything that we have studied from the start. Okay, because on the admin side, the only thing we have remaining as of now is the approval process, right? Automation approval process we have, and there is something called assignment rules. Okay, those are the 2 things we have remaining, which we will cover. Should not be an issue. But till now, what all parts we have done, which are the core parts of the admin, right? So the mock interviews will be based on those topics. This week, Friday, Saturday, Sunday. I'll share a
ping in the WhatsApp group because I can see not everyone is joining the class, right? So based on whoever answers there are available there, from there I will break you out into small groups and I will set up time for you guys. Okay, is that clear? Yes, sir. Yes. Everyone? Yes, sir. Yes. So because I was planning for this one, so I also have made ready the document which I was working on for you guys. तो वो भी update हो चुका है, उसमें मैंने flows वगैरह का भी details वगैरह सब add कर दिया है. So I'll share that to you guys tonight, right? And tomorrow we'll have class normal. Day after tomorrow और उसके अगले दिन. ये 2 दिन आपके पास है time to prepare. You go through the document, you go through the recording, जो भी doubts है, जो भी queries है, वो आइए WhatsApp group पे आप post कीजिए, clarify कर लीजिए. Those 2 days are for you. Then Friday, Saturday, Sunday. Out of those 3 days, I'll schedule the interviews. And in interviews, I'm expecting you guys will be coming prepared. Okay? Okay, sir. Right. Great. Fine. Okay. Then let's do one thing. Let's make today's session a more of a doubt clearing session. So, yeah, go ahead, Salman. First, you go. सर मैंने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐप क्रिएट बनाया. उसमें मैंने टैब्स दिए बुक्स, मेंबर्स, बोरो ट्रांजैक्शन, रिटर्न ट्रांजैक्शन एंड बुक रिव्यूज. Okay. ओके. तो मुझे कंफ्यूजन इसमें हो रहा है. मतलब मैं कल से थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था बट लेकिन हुआ नहीं. यहाँ पे मैंने अभी एक फॉर एग्जांपल एक जो बोरो ट्रांजैक्शन है तो इसमें मैंने लुकअप करवाए रिटर्न ट्रांजैक्शंस में भी. जैसे कि फॉर एग्जांपल डेट है और ड्यू डेट है. Okay. तो जस्ट आपके एंड से कंफर्म करना चाहता कि मतलब ये मतलब प्रॉपर हो चुका है या नहीं. यहाँ पे आस्क क्या है, तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है बोरो ट्रांजैक्शन. राइट. Okay. Right. And then inside this, what you are doing is book 1 किसने लिया, बुक लिया, अनिल ने लिया, बुक है, मेंबर है, कॉन्टैक्ट है, लुकअप. जब उसने किया बोरो डेट किया, ड्यू डेट किया. ओके फाइन. बट देन रिटर्न ट्रांजैक्शन के साथ यहाँ पे रिलेशन कैसे होगा? ओके, यू हैव मेड इट अ लुकअप, यस. राइट? But this should not go one way, right? See, think of it this way. Which records comes first? कौन सा रिकॉर्ड पहले आएगा, बोरो का या रिटर्न का? बोरो का आएगा. बोरो का आएगा. फिर जब हम बाद में रिटर्न का करेंगे तो देन रिटर्न वी हैव टू लिंक टू अ बोरो, राइट? कि ये रिटर्न कौन से बोरो के लिए है. Yes, ideally बोरो का रिकॉर्ड शुड हैव बीन इनिशियली पहले क्रिएट हो जाएगा, राइट? जब भी रिकॉर्ड बोरो होगा तब बोरो का ट्रांजैक्शन मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा. एंड देन जब मेरा रिटर्न का ट्रांजैक्शन क्रिएट होगा तब वहां पे मैं लिंक करूंगा, अच्छा ये रिटर्न कौन से बोरो के अगेंस्ट हुआ. इन दिस केस व्हाट हैपेंस, अगर आप रिटर्न ट्रांजैक्शन में जाओ, ओपन द रिकॉर्ड हियर, राइट? सो थिंक ऑफ इट लॉजिकली. कौन कब बोरो हुआ था ये? रिटर्न पे कोई ड्यू डेट वगैरह कुछ लिंक्ड है यहाँ पे? This return should have a lookup to the borrow, right? राइट. And okay, now see what this you will guys have to practice a lot, but over time this comes how. अब इस structure को हम देखेंगे, right? Everyone, please notice what all we could have done here. Okay. बोरो में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? बुक का नाम है, बोरो डेट है, एक ऑटो कैलकुलेटेड आपने रिटर्न डेट ड्यू डेट डाला है, मेंबर डाला है, दैट इज ऑल. ओके. नाउ
रिटर्न डेट का एक फील्ड है. ओके, लेट्स कीप अ डेट फील्ड फॉर रिटर्न, राइट. फाइन अमाउंट आल्सो, फाइन अमाउंट का फील्ड. ओके, फाइन अमाउंट का फील्ड विल थिंक लेटर. थिंक ऑफ इट दिस वे. बोरो डेट है हमारे पास, ड्यू डेट है हमारे पास, राइट. ये जब हम किसी ने बोरो किया उसी टाइम पे क्रिएट हो गया. अब हमारा जो रिटर्न ट्रांजैक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, अगर वहां पे हम एक लुकअप डालते, राइट, वो लुकअप हमारा क्या होता, टू अ बोरो. सो वहां पे हम लुकअप से क्या कर सकते थे, इट इज नॉट जस्ट एक बोरो हम पॉपुलेट कर सकते थे, रिटर्न ट्रांजैक्शन में ही आपका रिटर्न डेट का फील्ड भी होना चाहिए था. राइट, गो टू द रिटर्न ट्रांजैक्शन. रिटर्न ट्रांजैक्शन पे अगर आपका एक रिटर्न डेट का एक फील्ड है, ओके, रिटर्न डेट का एक फील्ड है, और एक बोरो डेट का भी, बोरो ट्रांजैक्शन का भी लुकअप होता, देन व्हाट यू कुड हैव डन इज, रिटर्न ट्रांजैक्शन पे आप एक फॉर्मूला फील्ड बना सकते थे, ओवर ड्यू डेज. और वो फॉर्मूला क्या होता, रिटर्न डेट माइनस लुकअप का बोरो ट्रांजैक्शन डॉट ड्यू डेट. नंबर ऑफ डेज आपके पास आ जाता. राइट. राइट सर. Do one thing, go to setup, and on return transaction create a lookup to borrow transaction. See, as an admin, when you are thinking of structure of what fields to do, what would be the better structure, right, तो आप logically सोचना पड़ेगा आपको. Go to fields and relationship, create a lookup relationship to borrow transaction. Okay, you already have a lookup to borrow transaction. Why is it not on page layout? सर एक्चुअल मैंने बनाया है बोरो हाँ, ट्रांजैक्शन, इसको पेज लेआउट पे डालो फिर आप. लेकिन लुकअप विद द ओनली यहाँ पे रिटर्न ट्रांजैक्शन आना चाहिए ना मैं सर. नहीं, रिटर्न ट्रांजैक्शन पे आपका बोरो ट्रांजैक्शन के साथ रिलेशन होगा. एंड आई वुड से नॉट इवन इट शुड बी अ लुकअप, इट शुड बी अ मास्टर डिटेल. बिना बोरो के रिटर्न नहीं हो सकता, राइट. राइट. सो इट शुड बी अ मास्टर डिटेल. गो टू दिस फील्ड, एडिट दिस फील्ड, मेक इट मास्टर डिटेल. मेक इट अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप. सर चाइल्ड रिलेशनशिप सेम ही रहेगा. हाँ, चार्ज रिलेशनशिप सेम रहेगा. ये आपका बोरो ट्रांजैक्शन पे दिखेगा. दैट इज फाइन. सेव. नेक्स्ट नेक्स्ट. राइट. नाउ ओके, दिस इज डन. एड दैट ऑन द पेज लेआउट. रिटर्न ट्रांजैक्शन का पेज लेआउट मॉडिफाई करो पहले. कहाँ गया फील्ड, फील्ड क्यों नहीं. Same. Where is this field? Borrow transaction is there, right? Okay, यस. borrow transaction is there on the page layout. Why is it not showing on the UI? Go to the UI. Oh, it is. I missed it. Fine. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, right? Fine. Now go to return transaction, create another field. सर ये भी सेम मास्टर Just डिटेल ही रहेगा. नहीं नहीं, एक फॉर्मूला फील्ड बनाइए. This should be overdue days, and this should be a number.
Right. Now inside this, you click on insert field. Right. Now make this first we have to select the return date. रिटर्न ट्रांजैक्शन में आपका एक रिटर्न डेट रहेगा. तो डायरेक्टली Return date. ट्रांजैक्शन रिटर्न डेट. ओके. हाँ, रिटर्न डेट इंसर्ट. राइट. एंड दूसरा एक और फील्ड आप ऐड करोगे. यहाँ से बोरो ट्रांजैक्शन के लुकअप पे क्लिक करो और रिलेशनशिप पे क्लिक करो. फोर्थ वन. यहाँ पे रहेगा आपका ड्यू डेट. Insert. Right. Now do one thing. राइट. इसमें आप करो एक एकदम लेफ्ट में फॉर्मूला में एक मेथड है डेट वैल्यू, उसको ऐड करो. डेट वैल्यू, एवरीथिंग कैपिटल, डेट वैल्यू, और पुट दैट रिटर्न डेट इनसाइड अ ब्रैकेट आफ्टर दैट. सर यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड टाइप में. हाँ हाँ. राइट. नहीं नहीं, उससे पहले आप होल्ड. जहाँ पे नीचे आपका फील्ड का नाम आया, राइट, वहाँ पे. ओके, लेट मी जस्ट पिंग इट. राइट इट लाइक दिस. डेट वैल्यू. इसके अंदर रहेगा return date underscore c. प्लांट्स के डेट वैल्यू. दूसरा फील्ड क्या है? बोरो ट्रांजैक्शन. डॉट ड्यू डेट. राइट. मैंने टीम्स चैट पे पिंग किया. पुट दिस फॉर्मूला, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला के अंदर जो है उसको हटा के ये पेस्ट करो. What happened here? What did I put here? Scroll up, scroll up. Go to advanced formula here. Go to advanced formula. Advanced formula. स्क्रॉल डाउन. ये राइट साइड में जो फंक्शंस है वहां पे स्क्रॉल डाउन करो. यहाँ पे डेट वैल्यू होगा मेथड. आई नहीं, ऊपर रहेगा. ओके 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 ओके. नो नो, मेक इट डेट टाइम वैल्यू. मेक इट डेट टाइम वैल्यू. ये आपका डेट टाइम फील्ड्स है. इट इज नॉट डेट. राइट. आपने डेट टाइम फील्ड्स बनाया है, तो ये डेट वैल्यू को डेट टाइम वैल्यू कर दो दोनों जगह. एक बार. राइट. नाउ सेव दिस फील्ड. Now add that field to the page layout. Oh, I think you already added. Go to the page layout, refresh. Right. Now do one thing.
आपका बोरो ट्रांजैक्शन पे जाके देखो, ये जो बोरो ट्रांजैक्शन है आपका, उसमें आपने ड्यू डेट क्या डाला था? 23rd जून। 23 फाइन। यस। अब रिटर्न ट्रांजैक्शन पे आप रिटर्न डेट डालो, लेट्स से 1 जुलाई। कैलकुलेट हो गया सर, ओवर ड्यू डेज 8 डेज। राइट, 8 डेज का कैलकुलेशन हमारा हो गया। यस। नाउ अब यहाँ पे, अब नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे, आपने जो बोरो ट्रांजैक्शन पे जो आपने फाइन वाला फील्ड भी आपने क्या बनाया है? यूजर इनपुट बनाया है। Should a राइट सर। fine be user input or should it be something which is also calculated automatically? राइट। बट सर Right? हाँ सर, उसके साथ साथ मेरा कहना ये भी था कि अभी जैसे बोरो ट्रांजैक्शन में मैंने एक रिकॉर्ड भी क्रिएट किया, लाइक रिटर्न ट्रांजैक्शन का, वो भी मतलब मतलब फॉर एग्जांपल रिटर्न करने के बाद में बोरो ट्रांजैक्शन में ये भी ऑटो फिल होना चाहिए ना? नहीं, आप देखो ना, as soon as you created that return transaction पे master detail, ये borrow transaction के साइड में related list में आया कि नहीं? return transaction इसका एक है, ये राइट साइड में आपका related list में आया ना return transaction? राइट। हाँ सर। Right? हम्म। So मतलब अगर ये यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे, ये अगर नहीं रहता तो भी चल जाता सर? हाँ, यहाँ पे लुकअप की जरूरत ही नहीं थी, लॉजिकली यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए। बोरो का ट्रांजैक्शन एक लाइब्रेरियन क्रिएट करेगा जब वो बुक किसी को दे रहा है, राइट? जब बुक वापस ले रहा है, हिज ओनली वर्क शुड बी एक रिटर्न ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाना, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, अच्छा। राइट? अभी अभी फॉर एग्जांपल जैसे रिटर्न ट्रांजैक्शन के लिए है, वैसे भी फाइन अमाउंट ये भी मतलब रिटर्न ट्रांजैक्शन में होनी चाहिए, मतलब बोरो ट्रांजैक्शन में नहीं होना चाहिए, राइट? ये राइट, रिकॉर्ड। फाइन अमाउंट तो रिटर्न ट्रांजैक्शन में होना चाहिए, बट द अदर थिंग शुड बी, अब सपोज किसी ने चार, ओके थिंक ऑफ इट दिस वे, हाउ टू मेक द सिस्टम बेटर, ठीक है? तो मेरा इस बोरो ट्रांजैक्शन पे लेट से 100 रुपीज हो गया, राइट? एंड किसी एक में 150 हो गया, किसी एक में 200 हो गया, राइट? When a person comes that, okay, I want to clear all my fines, right? Then the librarian, should he go to every borrow transaction, look for a fine, or would it be better कि अगर उसका जो मेंबर है, मेंबर पे ही एक फील्ड हो फाइन, कि टोटल फाइन कितना देना है उसको? राइट राइट सर। So then what you could have done is, आप रिटर्न ट्रांजैक्शन पे, right? So your this member is a master detail for borrow transaction, right? यस सर। रिटर्न ट्रांजैक्शन पे भी मेंबर शुड सर बी अ मास्टर डिटेल। सर मैंने लुकअप करवाया था। Okay, okay. So this, okay, see here the mistake is there, right? When you know कि एक record is mandatory for another record to be created, बिना मेंबर के ना आप बोरो ट्रांजैक्शन बना सकते हो, बिना मेंबर के ना आप रिटर्न ट्रांजैक्शन बना सकते हो, राइट? सो देन व्हाई मेक इट अ लुकअप? आप लुकअप बना रहे हो, दैट मीन्स अगर मैं ये मेंबर यहाँ पे ब्लैंक कर दूं, तो देयर विल बी अ बोरो ट्रांजैक्शन विदाउट एनी पर्सन जिसने बोरो किया है। इज दैट लॉजिकली करेक्ट? नो सर। एनीवन? Master edited. सॉरी, प्लीज रिपीट। Relationship should be master detail, not lookup. यस एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज नेसेसरी। जैसे हमारा क्या था, राइट? हमारा बिना कैंडिडेट के एम्प्लॉय नहीं बन सकता, राइट?
We know that for any employee it should be there. कस्टमर कॉन्टैक्ट बनाने के लिए हमारे पास अकाउंट होना जरूरी है, राइट? बिना कस्टमर के क्या आप ऑर्डर ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। तो बिना मेंबर के भी आप ट्रांजैक्शन बोरो या रिटर्न नहीं कर सकते हो। सो दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी अ सिंगल बोरो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जहां पे कोई मेंबर ना हो। देन मेक इट अ मास्टर डिटेल, राइट? ओके, सो यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल दीज फील्ड्स। जब आप फील्ड टाइप्स बना रहे हो, you have to think of it this way. As an admin, my approach should be make as much less work for the actual user as much as possible. अगर कोई चीज मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, वेदर इट जस्ट भी एक फॉर्मूला फील्ड से कैलकुलेट करना या कोई ईमेल ही भेज देना या एनीथिंग, you should always do that, right? And anything that can create a chance of error. अभी ये आप यहाँ पे मेंबर वाली फील्ड को ब्लैंक कर दीजिएगा इस बोरो ट्रांजेक्शन पे, सेव कर दो। Okay, here you have made it mandatory on the page layout. Yes, sir. ओके ओके, बट पेज लेआउट से हटाओ, पेज लेआउट से, बिकॉज अगर किसी ने कोड से बनाया तो देन व्हाट विल हैपन, वी वांट टू सी दैट, राइट? तो अगर ये पेज लेआउट में मैंडेटरी ना होता तो क्या हो जाता, ये आपका रिकॉर्ड सेव हो जाता। नाउ गो टू मेंबर्स, गो टू दिस मेंबर, Can I select anyone? नो नो, द वन दैट इन आशिक, राइट? द वन जिस पे हमने बहुत ट्रांजैक्शन देख Yeah. रहे थे, राइट? सो व्हाट वुड हैव हैपेंड, इस मेंबर का अगर कोई बोरो ट्रांजैक्शन क्वेरी करता सिस्टम से और वो लुकअप ब्लैंक हो जाता, सो देन वो दिखाता नहीं इसने तो कोई बुक बोरो ही नहीं की है, राइट? So these things you have to keep in mind when you are creating fields or structure, right? Or this is more like जो schema structure जो हम बना रहे थे, right? This is why we had covered relationship separately. कि relationship बनाने में आपको एक logic सोचना पड़ेगा, what makes sense? Why should I make something lookup? Why should I make something master detail? Right? You should not be making something master detail which should be a lookup, right? कोई फील्ड है जो ऑप्शनल है तो उसके बिना भी रिकॉर्ड बन सकता है, तो आप उसको क्यों मास्टर डिटेल बनाओगे? सिमिलरली कोई फील्ड है जो मैंडेटरी है, उसको आप क्यों ऑप्शनल बनाओगे? राइट, दिस वाज द क्वेश्चन आई हैड आस्क्ड यू दैट पीपल विल आस्क इन इंटरव्यू, व्हेन शुड यू यूज मास्टर डिटेल, व्हेन शुड यू यूज लुकअप? दिस इज द टेक्स्ट बुक केस ऑफ व्हेन मास्टर डिटेल शुड बी यूज्ड, राइट? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Clear होगा. फाइन, ग्रेट, ओके. Anyone else? You have any more doubts? Sir, I want to ask one question, sir. Yes. Okay. Sir, for date type date, which one we should prefer, sir? Date or time? Generally, Okay. which Okay. one? Yeah. So when you have to be very specific, let's say अगर मैंने आपको बोला होता कि मेरे को एक कोई कॉल आउट करना है और वो किस टाइम पे मैंने रिक्वेस्ट भेजा वो मेरे को सेव करना है, राइट? या फिर जब मेरा कोई केस है मैं क्लोज कर रहा हूँ या ऑर्डर प्रोसेस कर रहा हूँ, राइट? तो ऑर्डर प्रोसेस कब हुआ था, राइट? सो इन दैट केस आई वुड नीड द डेट टाइम ऑल्सो कि इतने बजे, अगर आज आपको कोई बोलता है कि मेरा आप मेरा रिफंड देखिए आया क्यों नहीं, तो पूछेंगे आपने कितने बजे ऑर्डर किया था, हमने इतने बजे आपको रिफंड आपके बैंक अकाउंट में भेजा है, स्टेटमेंट देखिए, राइट? सो देयर आर वैल्यू सिनेरियोस जहाँ पे टाइम का नीड है,
देन देयर आर सिनेरियोज, जैसे कि हमारे केस में जब हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट, तो हमने किया था ज्वाइनिंग डेट, राइट। अब ज्वाइनिंग डेट तो आदमी का से 6 मई है, तो 6 मई है, राइट। ज्वाइनिंग डेट में ओनली द डेट मैटर्स, द डेट टाइम डज नॉट मैटर, राइट। कैलकुलेशन में आपका Yes. फ्यूचर में कौन सी वैल्यू का यूज होगा वो आप देखेंगे। इन दिस केस जैसे यहाँ पे इन्होंने डेट के लिए सारा डेट टाइम लिया है, राइट, बट यहाँ पे क्या हम टाइम के बेसिस पे कुछ कैलकुलेट करें हैं? हम मैक्स टू मैक्स या ओवर ड्यू डेट हिसाब करके हम फाइन के लिए पर डे हिसाब करेंगे। सो देन वी हैव टू यूज डेट, इट इज बेटर टू यूज डेट, राइट। Yes, sir. तो द फील्ड टाइप डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, कि हमको टाइम की जरूरत अगर नहीं है तो हम क्यों बेकार में डेट टाइम लें। Okay, sir. Sir, should I stop sharing? Yeah. You don't have any other questions, right? No, sir. Fine. You can stop sharing. Right. Anyone else? Any other questions? किसी को कोई भी डाउट हो अभी तक जो जो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से अभी तक, यूजर प्रोफाइल, शेयरिंग रूल्स, कॉन्फ़िगरेशन, वर्कफ्लो, सर फ्लो प्रोसेस, सर मैं उसी बात कर रहा हूँ। हेलो यस सर, शेयरिंग रूल्स अगर ब्रीफ में आप बता देते तो अच्छा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था उसमें। शेयरिंग रूल्स, ओके फाइन फाइन। सो कॉन्सेप्चुअली थिंक ऑफ इट दिस वे, राइट। शेयर करने का मतलब हमारे पास सेल्सफोर्स में क्या है, बाय डिफॉल्ट एवरीवन हैज एक्सेस टू देयर ओन रिकॉर्ड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट का परमिशन इज डिफरेंट, क्या आपको एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो तो ऑब्जेक्ट परमिशन ही हो गया, राइट। एज्यूमिंग आपको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का परमिशन है, देन इट कम्स टू शेयरिंग रूल्स की सपोज आपने 2 एम्प्लॉय के रिकॉर्ड बनाए, राइट, तो आपको तो वो दिखेंगे, बट क्या वो मेरे को भी दिखने चाहिए? अगर दिखे तो should I also be allowed to modify those? These are the only two things you compare with sharing control, okay? Okay, for two people who have access to the same level of access to object, records का access उनको कैसे रहेगा? Can I see your records? Can you see my records? That is the only thing we are controlling. Now इसके अंदर what happens is एक हम बेसलाइन सेट कर सकते हैं, that will be applicable for everyone. वो होता है हमारा org wide जो है, राइट, बिकॉज द होल सेल्सफोर्स org wide जो हम OWD सेट करते हैं, राइट, विच इज व्हाट कि अक्रॉस द होल org उस ऑब्जेक्ट का परमिशन यही रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी बनाए। दैट मीन्स अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट का OWD सेट किया प्राइवेट, दैट विल मीन उस org में वो वाला ऑब्जेक्ट जो बना रहा है उसको वही रिकॉर्ड दिखेगा। अगर मैंने 4 कॉन्टैक्ट बनाए तो मेरे को वो 4 कॉन्टैक्ट दिखेंगे, आपको वो 4 कॉन्टैक्ट नहीं दिखेंगे। अगर किसी और ने 5 कॉन्टैक्ट बनाए उनको वो 5 कॉन्टैक्ट मिलेंगे, आपको और मेरे को वो 5 कॉन्टैक्ट नहीं दिखेंगे। अगर आपने 3 कॉन्टैक्ट बनाए, so only you will be see those 3 contacts, the other person or me won't be able to see. That is private, means everyone can see the data they have created, no one can see anyone else's data. This is when org wide you make it private. Is this clear? Yes, sir. Right. Now अब org wide हमने private बना दिया, so that is good. Then we have org wide public. org wide public में मतलब क्या हो रहा है, मेरे को भी आपके 3 उसके 5 रिकॉर्ड दिखेंगे, उसको भी आपके 3 मेरे 2 रिकॉर्ड दिखेंगे, एंड यू कैन आल्सो सी हिज 3 एंड माय 5 रिकॉर्ड्स, ओके। सो एवरीवन कैन सी एवरीवन एल्सेस रिकॉर्ड्स। बाय सी इट
means it is a read only. मतलब आप अपने 2-3 रिकॉर्ड्स मॉडिफाई कर सकते हो, मैं अपने 2 रिकॉर्ड मॉडिफाई कर सकता हूँ. I can see, okay, Wasim has 3 contact records, but I cannot edit those 3 records. So it is public read only. That means everyone can see everyone else's record. अपने record का always remember full access है. It is only about what other person can do with my record. Private means other person cannot see my record at all. Public read only means they can see my record, but they cannot make any changes. And then you have the last one, which is public read write, which means anyone can see any record and they can also modify that record. This is the OWT, right? Org write. ये क्लियर हुआ ये तीनों? हाँ सर जी. Right. Now think of it this way. अगर मेरा OWT is public read write, तो उसके बाद मेरे को किसी तरह का शेयरिंग का कंट्रोल बनाने का जरूरत है. Can you repeat again? Yeah. So if my org wide is already set to public read write, तो क्या मेरा कोई अलग से कोई रूल बनाने का बेनिफिट होगा, शेयरिंग रूल? नहीं, एक्चुअली रीड राइट तो दे दिए हम, मॉडिफिकेशंस कर देंगे एग्जैक्टली. ना. शेयरिंग रूल क्या कर सकता है? शेयरिंग रूल एक्सेस ले नहीं सकता, एक्सेस देता है. तो क्योंकि पब्लिक रीड राइट की वजह से ऑलरेडी एक्सेस है ही, तो शेयरिंग रूल बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता. मतलब नाउ द ओनली केस देन बिकम्स इज, अगर मेरे पास प्राइवेट है और मेरे पास या फिर पब्लिक रीड ओनली है, देन आई कैन क्रिएट शेयरिंग रूल्स. व्हाट डू शेयरिंग रूल्स डू? शेयरिंग रूल्स आर नथिंग बट org wide जो पॉलिसी है उसके ऊपर अगर आप due to some specific criteria you want to give access to some specific people, that is what sharing rule is. Based on a criteria, give access to a specific group of people. Now the criteria can be something very simple, एक field ये है तो दे देंगे, or the criteria can be very complex criteria, but based on the criteria आप access provide कर सकते हो किसी को, right? Now within that जब हम sharing rule बनाते हैं, then you can see क्राइटेरिया हम डिफाइन कर सकते हैं 2 तरीके से, राइट? देयर आर 2 वेज यू कैन डिफाइन दैट क्राइटेरिया, यूजिंग द फील्ड्स और द फार्मूला क्रिएट करके. ऐसा जो था रिकॉर्ड लेवल जो था और दूसरा था, राइट? तो क्राइटेरिया आप डिफाइन करोगे कि सपोज ये यहाँ पे ओवरड्यू डेट इज हाई, इज पॉजिटिव, राइट? या ओवरड्यू डेट इज ग्रेटर देन 5, देन शेयर दिस रिकॉर्ड टू समवन. ओके, तो क्राइटेरिया आप ऐसे डिफाइन करते हो. Then the next part, if आप जब access दे रहे हो तो you have to give the access to someone. So by someone, what are the options? आप किसी एक specific individual user को भी दे सकते हो, आप multiple group user को भी दे सकते हो. अगर एक user को देना है, you just select the user, you add it. Or you can make a group of users. क्यों बना लो आप, एक public group बना लो, role बना लो, उस role को आप access दे दो. फिर वो जिस user के लिए applicable होगा उन सबको access मिल जाएगा. Think of it this way. ये जो लाइब्रेरी वाला जो अभी हमने एग्जांपल देखा, राइट? सो लेट्स हैव अ library invigilator. Okay, his purpose is only to collect fines, right? His purpose is only to collect fines. So हमने ये जो भी एग्जांपल देखा कि हम ओवरड्यू डेट बनाएंगे और उसके बेसिस पे हम एक फाइन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. व्हाट वी विल डू इज, नॉर्मली सबको अपना रिकॉर्ड ही दिखेगा खाली रिटर्न का. We'll set a criteria if the fine amount is greater than 0, right? Then share this record to the library invigilator. इससे क्या होगा, क्योंकि जो आपका डेस्क में जो लाइब्रेरियन है वो लोगों को बुक दे रहा है या बुक ले रहा है, दैट ऑल ही इज डूइंग. सो सारे रिकॉर्ड्स का ओनर इज दैट गाय, राइट? बट एज सुन एज किसी भी रिकॉर्ड का फाइन का अमाउंट विल बिकम मोर देन 0, वो वाला रिकॉर्ड लाइब्रेरी इन्विजिलेटर को अब दिखने लगेगा कि अच्छा ये एक रिकॉर्ड है, इसका फाइन कलेक्ट करना है, राइट? सो baseline is org wide sharing settings.
जो our purpose should always be to keep it minimum. अगर आप ऑर्गवाइड शेयरिंग सेटिंग है पब्लिक रीड राइट करके रखते हो हर एक ऑब्जेक्ट का, सो दैट मीन्स एवरीवन कैन सी एवरीथिंग। आपके सिस्टम में डेटा का कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। सेल्स टीम को लोगों का सैलरी दिख जाएगा, राइट? एचआर टीम को फ्यूचर ऑर्डर्स दिख जाएंगे, राइट? ऑल दिस कैन हैपन। So to make sure data is only visible to whoever needs it, org-wide sharing should always be the least possible value you need. हाँ, अगर पब्लिक रीड ओनली ही रीड राइट चाहिए तो चाहिए, कुछ कर नहीं सकते, बट यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ ओके लेट्स गो विथ प्राइवेट, क्या इससे मेरा काम होगा? प्राइवेट से होगा नहीं तो पब्लिक रीडर पे जाएंगे, देन शेयरिंग रूल यूज करके हम एडिट का एक्सेस दे देंगे, दैट आल्सो वी कैन डू, राइट? तो दिस इज व्हाट यू आर कंट्रोलिंग विद दिस शेयरिंग सेटिंग्स। यहाँ पे org wide policies and then sharing rules use करके you give people access to someone else's data, what they can do with someone else's data, can they even see someone else's data? Okay, Okay, sir. right? Anyone else? कोई डाउट, कोई क्वेरी? See, I am giving you an opportunity, ask the queries you have. Mock interview में you don't know means you don't know, I won't ask why you don't know. Any topic someone wants me to give a recap? अभी जैसे शेयरिंग रूल का दिया, किसी को कोई टॉपिक में लगता है कि एक बार फिर से जस्ट ब्रीफ अगर बोल देते तो अच्छा होता? हाँ सर, थोड़ा पिछला वाला कर देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि 2-3 सेशन मेरे से मिस हो गया था और फिर कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया। कौन सा पार्ट? वो पार्ट भी नहीं पता, आपका आवाज नहीं है, कौन सा पार्ट? वो पार्ट भी नहीं पता अभी मुझे। 2-3 क्लास मिस हो गए थे, वो ऑब्जेक्ट के बाद में, फिर वो हुआ था शायद यूजर्स वगैरह के बाद में। यूजर क्रिएशन, उसके बाद में थोड़ा आगे। यूजर क्रिएशन के बाद हमने क्या किया था? प्रोफाइल, प्रोफाइल किया था, राइट? प्रोफाइल परमिशन सेट किया था, हाँ हाँ राइट? फाइन, या सो अगेन लेट्स गो दिस वे, राइट? तो अभी जैसे हमारे पास सेल्सफोर्स में जो पूरा स्कीमा है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है कुछ, सो हम कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट? सो जब किसी का हम यूजर बनाते हैं, लेट्स से आई क्रिएट योर यूजर की विजय विल नाउ लॉग इन टू माई एनवायरमेंट। अब मेरे एनवायरमेंट में लेट्स से 50 कस्टम ऑब्जेक्ट है, जिसमें सब में 10-12 में बहुत क्रूशियल डेटा है, मेरा कस्टमर का फाइनेंशियल डेटा है उसके अंदर, राइट? लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है वहां पे। सो आई डोंट वांट यू टू एक्सेस दोज रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो मेरे पर्सनल डेटा है, राइट? दैट यू शुड नॉट हैव एक्सेस टू। सो इन दैट केस मैं चाहता हूं कि इसको ये ऑब्जेक्ट ही ना दिखे, राइट? एंड आई वांट ओके ये 10 ऑब्जेक्ट है, खाली यही 10 ऑब्जेक्ट इसको दिखे आउट ऑफ 50, रेस्ट 40 इसको ना दिखे। सो व्हेन यू क्रिएट अ यूजर यू नीड सम काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जिससे आप उस यूजर को एक्सेस को कंट्रोल कर सको, कि उसको सेल्सफोर्स के अंदर क्या क्या दिखे, क्या क्या करने के इसके पास परमिशन हो, राइट? कौन कौन सा एक्शन वो ले सकता है, क्या वो रिकॉर्ड्स बना सकता है, क्या वो रिकॉर्ड डिलीट कर सकता है, क्या वो सेल्स क्लाउड में लॉग इन कर सकता है, सर्विस क्लाउड में लॉग इन कर सकता है, उसके यूआई में क्या क्या दिखना चाहिए, राइट? सो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स व्हाट सेल्सफोर्स हैज इज कॉल्ड अ प्रोफाइल। प्रोफाइल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ परमिशंस, कि आप खाली परमिशंस का एक ग्रुप है वहां पे, ऑब्जेक्ट्स का परमिशन आप दे दो, टैब का परमिशन आप दे दो, नॉर्मल सेल्सफोर्स का स्टैंडर्ड परमिशन आप दे दो, राइट? एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन आप दे दो। सो ये सब परमिशंस एक साथ किसी को देने के लिए व्हाट सेल्सफोर्स हैज डन इज इट हैज क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड प्रोफाइल। क्या प्रोफाइल लेवल पे सेट करो इसको, क्या क्या एक्सेस होना चाहिए, क्या क्या एक्सेस नहीं होना चाहिए। फिर जब भी आप कोई यूजर बनाओ, आप यूजर पे कोई एक प्रोफाइल टैग कर दो, तो उससे उस यूजर का एक्सेस डायरेक्टली
सेटअप हो जाएगा. व्हाट इज द बेनिफिट? हर यूजर को बनाते वक्त मुझे इंडिविजुअली उसका एक्सेस कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. आई विल कीप अ प्रोफाइल रेडी. 100 यूजर आए, 100 यूजर बनाए, हर एक को वो एक ही प्रोफाइल असाइन कर दिया, तो इमीडिएटली उसका एक्सेस सेटअप हो गया. So that is what I called profile. That it is the tool using which you set up what a user can access or not access. Profile is clear? Yes, sir. Right. Now अब हमारे पास ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको ये एक्सेस होना चाहिए, तो उसको हमने ये एक्सेस दे दिया. अब उसमें से ड्यू टू लेट्स से टेम्पोररी प्रोजेक्ट, मैं चाहता हूं कि इन 3 लोगों को थोड़ा और किसी चीज का एक्सेस देना है. ऐसा सिचुएशन हो ही सकता है, राइट? In that case, what will happen? I can't make change to profile. Let's say आप 16 जन हो क्लास में, right? And I make a change to profile कि खाली मुझे विजय और सलमान को एक्सेस देना था, right? But profile पे चेंज किया, so what will that mean? All 16 of you will get access. Then the other option is ठीक है, फिर मैं खाली आप 2 जन के लिए एक नया प्रोफाइल बनाऊं, फिर आप दोनों को वो असाइन करो. बट ऐसे तो फिर ओवर टाइम प्रोफाइल बनते ही रहेंगे, राइट? एंड प्रोफाइल बनाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है सेल्सफोर्स से. सो इंस्टेड ऑफ दैट, बिकॉज आई नो दैट ये जो एक्सेस आप दोनों को दे रहा हूँ, दिस इज अ टेम्पोररी एक्सेस, तो नया प्रोफाइल बनाने का कोई मतलब तो है नहीं. इसीलिए सेल्सफोर्स ने क्या किया है कि आप यूजर को कुछ भी प्रोफाइल में परमिशन दो, उसके बाद अलग से अगर आपको टेम्पोररी कोई अलग से कुछ ग्रुप ऑफ परमिशंस देना है, तो उसके लिए वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अ परमिशन सेट, जहां पे आप एक्स्ट्रा परमिशंस दे सकते हो. Now why I am just saying you can give this, because profile के अंदर you can also remove access, right? Profile के अंदर जाके you can also remove access, क्योंकि that is the baseline. अगर आप कोई स्टैंडर्ड प्रोफाइल ओपन करो तो उसमें आपको जाके दिखेगा कि अकाउंट का क्रिएट एडिट डिलीट परमिशन है, अब आपने वो हटा दी. सो यू रिमूव्ड एक्सेस टू समथिंग व्हिच द पर्सन ऑलरेडी हैड. परमिशन सेट में आप क्या कर सकते हो? किसी को अगर अकाउंट का परमिशन नहीं है, तो आपने परमिशन ऐड करके दे दिया उसको, राइट? लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी प्रोफाइल पे अकाउंट का परमिशन है, तो क्या आप परमिशन सेट से वो एक्सेस हटा सकते हो? नहीं हटा सकते हो, राइट? बिकॉज प्रोफाइल इज वेयर यू कैन गिव और टेक एक्सेस. परमिशन सेट में यू कैन ओनली गिव एक्सेस. So we use normally a combination of profiles and permission set. Right. Am I clear? Yes, sir. समझ आया आपको बेस? Yes, sir. Anyone else any questions? Sir, I have one question about the clone. Clone, okay. So, can I clone a record every time? Is it helpful or not? No, see, the clone का purpose is same as when we are cloning for other thing. Profile भी आप clone कर सकते हो, right? If Right. you know that the data will be similar to what you currently have, it is better to clone, right? Why clone is available? Think of it this way. एक ऑब्जेक्ट पे कितना फील्ड बन सकता है? एक ऑब्जेक्ट पे कितना फील्ड बन सकता है मैक्सिमम? Anyone? 150. Don't tell me you guys did not up, see that screen. up to 500. Anyone else? 150. Hmm? Up to 500.
Okay, Guessing? I heard someone say 250. I said 150, sir. 200. 150. ओके, सो मैंने आपको पहले क्या बोला था, सेल्सफोर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशंस होते हैं, राइट? सो बेस्ड ऑन एडिशन फील्ड्स आर अवेलेबल। बेस वेरिएंट जो है उसमें होता है 100। उसके बाद जो आपका स्टैंडर्ड वर्जन है, जैसा कि आप लोगों का डेवलपर एडिशन है, उसमें होता है 500। देन देयर इज अ जो प्रोडक्शन वेरिएंट जो कंपनीज यूज करती हैं, राइट, उसमें होता है 800, राइट? आई थिंक 800 भी बढ़ गया, आई थिंक 900 हो गया। जस्ट आई हैव टू चेक द लेटेस्ट रिलीज नोट, आई हैव नॉट सीन, बट या। 900. सो नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे, जब आपको पता है कि ये रिकॉर्ड मैं जो बना रहा हूँ इट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, खाली 10-12 फील्ड का चेंज हो, एंड योर रिकॉर्ड ऑलरेडी हैज से 400 फील्ड, तो आप नया रिकॉर्ड बना के 400 फील्ड्स पॉपुलेट करेंगे या क्लोन करके 10 को 10 को मॉडिफाई कर देंगे? Clone कर. ऑब्वियसली आप क्लोन करके 10 को मॉडिफाई करेंगे, राइट? यस सर। So that is a case where clone is better. लेकिन आपको पता है कि हर रिकॉर्ड में ऑलमोस्ट हर फील्ड में वैल्यू अलग होगा, तो देन नया रिकॉर्ड बनाइए। बट नॉर्मली Salesforce makes it, tries to make it easier to use, इसलिए it says कि do not put a lot of fields on the same object, instead maybe break it down into child objects, right? क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस आप सोचिए ना, अभी आपने जब एडिट अकाउंट किया आपको 10 फील्ड दिखता है, अगर यहाँ पे 500 फील्ड होता तो आप तो एडिट ही नहीं कर पाते सारा, राइट? Yes. So but the option is still there, which is why clone का option is also there. Based on the situation you can have the clone, and it is up to you. अगर आप पेज लेआउट से क्लोन का एक्शन हटा देते हो तो यूजर थोड़ा ना क्लोन कर पाएगा, राइट? राइट सर। So there are situations where clone is helpful. अभी जैसे प्रोफाइल में मोस्ट डेफिनेटली यू विल क्लोन, क्योंकि प्रोफाइल में सेटिंग्स इतना है, परमिशंस इतना है, राइट? यू हैव टू क्लोन, and even for that there is a recommendation, unless you know it is for an admin user, right? It is better to start cloning. There is a minimum access profile or something, right? Minimum access read only or system read only, that has almost no permissions. उस प्रोफाइल में बहुत ही कम परमिशन है, जस्ट लाइक लॉग इन कर सकता है, राइट? सो नॉर्मली व्हाट पीपल डू इज दे क्लोन फ्रॉम दैट प्रोफाइल, देन जस्ट बेस्ड ऑन देयर नीड उस एक ऐप का एक्सेस देंगे खाली, 5 ऑब्जेक्ट का एक्सेस देंगे खाली, 25 फील्ड का एक्सेस देंगे खाली, right? So as less access you want to give, only that you should give. Okay? ओके, थैंक यू सर। Right. Anyone else? कोई डाउट, कोई क्वेरी? सर, I have one more question about data import and export, because Okay. अभी जो मेरा प्रोफाइल है, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरा डेटा रिसर्च एनालिस्ट का प्रोफाइल है। तो मेरा जो हाँ हमारा कंपनी का जो CRM है, जो सेल्फोस ही है, तो हम हाँ। लोग एक में डेटा सेल्फोस एडमिन को देते हैं, वो डेटा हमारे हिसाब से वो डेटा अपलोड करता है सेल्फोस में, और हाँ सेल्स एंड मार्केटिंग टीम को डेटा प्रोवाइड एलोकेट करता है। तो उसके बारे में पूछना था, मतलब वो जैसे कि मुझे एक ही मालूम है, जैसे डेटा लोडर है, उसी के थ्रू ही डेटा मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, या मतलब अलग और कोई टूल है?
नहीं सी देर आर, जैसे डेटा लोडर की तरह ही दूसरे जो टूल हैं वो भी डेटा लोडर की तरह ही है, राइट, बट डेटा लोडर इज द सेल्सफोर्स रिकमेंडेड टूल, राइट, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप एक्सेल से या सीएसवी से भी डेटा लोड कर सकते हो। ओके, द ओनली थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज, जब जैसे एक्सेल में आपके कॉलम्स है, राइट, तो थिंक ऑफ इट दिस वे, कॉलम के नाम जो है आपके, जब आप मैप करते हो तो आपको बताना पड़ेगा, अच्छा इस शीट से मैं अकाउंट का डेटा अपलोड कर रहा हूँ, तो अब पहला कॉलम का नाम है कॉलम 1, लेट्स से आपका एक्सेल में कॉलम 1 2 3 ऐसे करके आपने नाम दे रखे हैं, तो डेटा लोडर में यू जस्ट हैव टू सेट कॉलम 1 में होगा अकाउंट का नेम, कॉलम 2 में है अकाउंट का ईमेल, कॉलम 3 में है लेट्स से अकाउंट क्रिएशन डेट, राइट, कॉलम 4 में है अकाउंट का टाइप, कॉलम 5 में है, सो हर एक कॉलम को आपको एक फील्ड के साथ मैप करना पड़ेगा, एंड देन यू जस्ट अपलोड दैट एक्सेल और सीएसवी। व्हाट सेल्सफोर्स विल डू इज ऑटोमेटिकली, अच्छा ये मैपिंग हमने किया था कि कॉलम 3 में जो है वो जाना चाहिए अकाउंट के नेम, तो वो जब उस रो का अकाउंट बनाएगा वो थर्ड को नेम में डालेगा, फोर्थ को ईमेल में डालेगा, ऐसे करके वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर देता है। सो यूजिंग एक्सेल डेटा लोडर से डेटा अपलोड करने बेस्ट रिकमेंडेड वे जो बल्क अपलोड करने हैं। ओके, ओके सर। सर इसका मतलब एक मतलब इन फ्यूचर आप एक डेमो दे सकते हो? हाँ, इसमें इसमें देयर इज नथिंग वी कैन हैव, you just remind me later, ओके, right, I'll give it for this, there is nothing to, हम लोग का जो डेवलपर एडिशन जो और क्या उसी में हो जाएगा ये डेटा ओके, लोडर। ओके, ठीक ठीक है, थैंक यू। और एक क्वेश्चन था मेरा, राइट, और ये मास्टर डिटेल और लुकअप रिलेशनशिप है दोनों, ठीक है, अब किस वक्त पे क्या यूज कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिकली मुझे ये करेंगे सर, बिकॉज अगर मेरा I mean, दूसरे दूसरे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो राइट, किसको कैसे सुटेबली करें लुकअप या मास्टर डिटेल, पूरा अंडरस्टैंडिंग ओके, करना। yeah, again fine, no issue, so for this the logic should be pretty simple, अगर मेरे पास कोई एक रिकॉर्ड है जिसके बिना दूसरा नहीं बन सकता, थिंक ऑफ इट दिस वे कि आपका राइट, आपका जो पैन कार्ड है, राइट, और आपका बैंक अकाउंट, बिना पैन कार्ड के बैंक अकाउंट बन सकता है? नो No. नो नो, राइट, तो अगर आपका रिकॉर्ड इज ऑफ अ बैंक अकाउंट तो उस पे पैन शुड बी मैंडेटरी और नॉट? यस, अगर मेरा पैन कार्ड ही डिलीट हो जाए तो क्या मेरा बैंक अकाउंट चलना चाहिए या वो भी डिलीट होना चाहिए? वो भी डिलीट होना चाहिए। तो देन my second record, which is bank account, is directly dependent on my first account, right? So there should be a master detail relationship on bank account for the field PAN card, कि बिना पैन कार्ड के आई कैन नॉट समवन क्रिएट अ बैंक अकाउंट, राइट? अगर ये लुकअप होता तो क्या होता? इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट, मैंने पैन कार्ड डाल के बैंक अकाउंट बना देता बिना डाले, और चलो अगर मैंने पैन कार्ड डाल के भी बैंक अकाउंट बना दी, बाद में मैंने अगर पैन कार्ड वाला रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो बैंक अकाउंट में क्या होगा? जस्ट वो फील्ड ब्लैंक हो जाएगी, सो देन आई एंड अप विद अ अकाउंट व्हिच डज नॉट हैव अ पेरेंट पैन,
Is that correct? Correct, sir. Right. No, it is not correct. That should not happen, right? वो नहीं होना चाहिए. तो वो डाटा Right? डिलीट That हो is not जाएगा तो something that फिर should be नहीं होगा। happening. So लुकअप में जो है वो it should be like not happening, right? I mean, exactly, lookup yes. में आप वही रखोगे that okay, it is related to this, but it can exist without it also, right? Only then you make it as lookup. Okay. ठीक है सर. तो मास्टर डिटेल का वही कंसिडरेशन है कि आपका without the master the child record cannot exist, and if the master record is deleted the child record should also get deleted. So then you make it a master detail, else you make it a lookup. Right. क्लियर? इससे क्लियर हो आपको कब मास्टर डिटेल और कब लुकअप लेना है? जी सर, क्लियर मान ली. Anyone else? Anyone else? Any doubts? Any queries? Nothing? सर और एक बात, जो मैंने आपका असाइनमेंट किया था ना, Right. उसमें ये थोड़ा चेंजेस दिख रहे थे मुझे. फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन फ्लो और सारा कुछ ना, थोड़े कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? आई मीन समर 25 कुछ ऐसा कुछ हुआ है? आई मीन हाँ, ये दिस इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस. आई टोल्ड यू राइट, बीच में जब वो कैशे वगैरह में भी इशू आ रहा था राइट, और वाज डिलेइंग, सो द समर 25 रिलीज वाज कमिंग. सो आई थिंक इट इज ऑलरेडी रिलीज्ड, बट आई थिंक डेवलपर एडिशंस में अभी तक नहीं आया होगा. अगर आ गया होगा तो देन आई थिंक वी जस्ट हैव टू गो थ्रू द नोट्स. आई थिंक मे बी कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ होगा, कुछ नहीं, यूआई चेंज हुआ होगा. आप जो स्क्रीन फ्लो बना रहे थे उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स आ रहे थे, इसमें इतने बड़े रेक्टेंगल्स आ रहे हैं मुझे, तो वही समझा. हाँ, वो यूआई वो तो होता रहता है वो. दैट इज फाइन. दैट इज नॉट अ मैटर. वो ऐसा तो होता रहेगा. फंक्शनैलिटी चेंज हुआ कि नहीं, वो आपको एक समर रिलीज का रिलीज नोट आएगा, मिलेगा आपको राइट. जस्ट सर्च फॉर सेल्सफोर्स समर 25 रिलीज नोट्स. वहां पे आपको पूरा चेंज दिख जाएगा कि ये इस रिलीज में सेल्सफोर्स ने क्या क्या मॉडिफाई किया है. ओके. तो वो चेंजेस होते रहेंगे सर, आई मीन ये साल में 3 होते यूआई हैं. में. दिस हैपेंस 3 टाइम्स. मैं समझा कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ मैं. नहीं, ये 3 टाइम्स अ मंथ होगा आपका. And this keeps happening. It's fine, nothing to worry about this. हाँ, बट जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में जाएंगे तब अलग से काम आता है इसके लिए कि आपके ऑर्ग में जो एग्जिस्टिंग कोड है वो सब चलेगा ना. जो चेक करो रिलीज के बाद कोड एरर ना हो जाए. समटाइम्स व्हाट दे डू इज कोई एक मेथड डेट से डेप्रिकेट कर दिया कि आज से ये मेथड नहीं चलेगा. तो अगर आपने उसका ऑल्टरनेटिव मेथड जो दिया है, अगर आपने कोड में अपडेट नहीं किया तो क्या होगा, जिस दिन आपका नया रिलीज आ जाएगा उस दिन से आपका कोड फेल होने लगेगा. Okay, so there is a release, plan that people have to do periodically. Ready the sandboxes, ready the environment for the new patch.
उसके लिए भी अलग पूरा प्रोसेस है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वी हैव अ होल टेस्ट सूट डेवलप्ड। ओके, पूरा एक हमारा टेस्ट सूट रहता है डेवलप्ड फॉर दिस होल थिंग, कि क्या क्या हमको मॉडिफाई करना है, क्या क्या चेंज करना है। एंड एक बार रिलीज चलाने के बाद हम पूरा टेस्ट सूट चलाते हैं, जो पूरा सेल्सफोर्स में जो जो फंक्शनलिटी है वो सारा फंक्शनलिटी पूरा चलाएगा फ्रॉम स्क्रैच। एंड इफ एवरीथिंग वर्क्स एज एक्सपेक्टेड, मतलब चलो ठीक है, सब चल रहा है। ठीक है। सर वो गवर्नर लिमिट्स वो क्या कर सकते हैं? Governor limits is something you have to keep more in mind when writing code. Okay. आउट ऑफ द बॉक्स टूल से गवर्नर लिमिट्स नहीं हिट होता है, वेरी रेयरली। अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स से गवर्नर लिमिट्स हिट कर दिया somehow, then people will call you to now कैसे किए, राइट। बट कोड में बहुत इजीली गवर्नर लिमिट हिट हो जाता है। तो इसलिए जब हम कोड करेंगे, व्हाट आर द थिंग्स, बिकॉज कोड लिखने के लिए देयर इज अ रिकमेंडेड सेट ऑफ गाइडलाइंस जो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो टू मेक श्योर देयर इज the least chance of you hitting the governor limit. Okay, ओके सर। तो वो हम जब कोड लिखेंगे तब हम देखेंगे। क्वेरी के लिए गवर्नर लिमिट्स है, राइट। उसके बाद जस्ट कॉल आउट्स के लिए लिमिट्स है, एसिंक्रोनस कॉल के लिए लिमिट्स है। तो all of these limits are there, we will check how to do। there is a specific class also limits। उस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स है जिससे आप करंट लिमिट कितना हुआ है, आपने कितने यूज कर लिए हैं, कितना अवेलेबल है, ये सब आप पुल कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर। अच्छा ठीक है। Right. Okay. Good. I think it's good to be utilized this session for more of the doubts clearing. I would assume now you guys don't have any doubts, but still you have days. कल हम लोग record ticket flow कर लेंगे फिर, and tomorrow, day after tomorrow, and उसके बाद these 2 days you guys just study and go through the recordings. Recordings पढ़ते वक्त आपको surely नए doubts आ सकते हैं, कुछ questions आ सकते हैं, queries आ सकते हैं, right? So no worries, compile those immediately, ping in that WhatsApp chat. I'll see it, I'll respond as soon as possible कि आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, वो डाउट क्या है। द नोट्स आई विल शेयर टू यू गाइस, राइट, जिसमें आपका वो रहेगा कि व्हाट टू डू, राइट, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आ सकते हैं, राइट। आई विल शेयर दोस टू यू, एंड आफ्टर दैट I'll share a chat in the WhatsApp chat, and all the people, you need to respond yes to that message and also share your email ID. Okay, name and email ID you need to share. Based on that, I'll create groups, right? And I'll share the times of each of those groups. Okay, is it clear? Okay, sir. Yes, sir. Great, sounds good. I think that should be all. I don't see anything else as of now. बाकी जो हमारे साइड से जो है वो तो हम कर ही लेंगे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। So that should be fine. So yeah, I think just please start preparing. Okay, please keep preparing as of now, keep studying, right? Recordings फिर से go through कीजिए, पूरा पढ़िए, जहाँ पे भी एरर है, जहाँ पे भी डाउट है, जो भी आपको क्वेरी है, आप उसको भी पढ़िए, and then we'll connect again. Okay? Okay, sir. Great.